Hello and good morning everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the third session of chapter number 3, fiber to fabric. So let us continue that, but before that let us pray. Join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. In the last session we have learned from where can we obtain fibers from the and which type of animals we can obtain the fibers. Today we are going to learn how we can obtain wool from that fibers. Okay. So before obtaining these very nice fine quality of wool, we need to rear the sheep and we need to breed the sheep. About selective breeding we have learned in the last session. Today we are going to learn about the rearing of the sheep. See, you have seen the shepherds taking their herds of sheep for grazing. Apart from grazing sheep, rearers also feed them a mixture of pulses, corn, jawar, oil cakes, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains, and dry fodder. In many parts of our country, in this manner, sheep are reared. For what? For obtaining the wool. Now, once these sheep have been developed a thick growth of hair on their body, the hair are shaved off for getting the wool. See, this way the hair will grow and then they would be shaved off. Now processing fiber into wool. कैसे किया जाएगा रियरिंग और फाइबर कैसे मिलेगा उसमें से और उसको हम वूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है. पर देखो, इसको जब हम शेव करेंगे फ्लीस को, हेयर को, मतलब हमें फाइबर्स मिलेंगे शीप की बॉडी में से वेन एवर वी विल शेव ऑफ. बट दीज फाइबर्स कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली to make sweaters or shawl. For that, different steps are there. One by one we will learn each of these steps. Okay, the first one is shearing. Shearing is the first step. In that process we remove the fleece and the thin layer of skin from the body of the sheep, but we should remove that with very care that we don't do any harm to the sheep. ऑब्वियसली हार्म नहीं करेंगे. और ये केस कैसे नहीं होगा? क्योंकि हम इसमें मशीन यूज़ करेंगे. जैसे बार्बर्स यूज़ करते हैं ना, शेव करते हैं, तब कैसा मशीन यूज़ करते हैं, उस टाइप के मशीन से हम ये फ्लीस शीप की बॉडी में से निकाल देंगे. अभी ये कब करना चाहिए? वी शुड डू इट इन द समर ओनली व्हेन देर इज हॉट वेदर. सो इफ यू रिमूव दिस हेयर फ्रॉम द बॉडी देन ऑल्सो शीप विल बी एबल टू लिव, बिकॉज तभी ठंडी नहीं होगी तो उनको ज़्यादा वार्म तो चाहिए नहीं. अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में करेंगे तो फिर इट वुड बी वेरी हार्मफुल टू द शीप. Slowly after some days the hair again starts growing on the body of this animal. I hope first step is clear. Okay, what is it? Shearing, the process of removing fleece from the sheep body, that is called shearing. अभी जो हमें फाइबर मिला sheep की बॉडी में से shearing करके, that would not be clean, it would contain dirt. Okay, और dirt में क्या होगा? grease और dust. तो सेकेंड प्रोसेस होगा यहाँ पे जिसको बोलते हैं स्कोरिंग. ओके, स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डर्ट, दैट इज ग्रीस एंड डस्ट. बिफोर वी पास दिस फाइबर फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस वी नीड टू रिमूव दिस डस्ट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. पर इसको हम निकालेंगे कैसे? वॉश करके. कैसे निकालेंगे? वॉश करके. इसको हाथ से भी किया जाता है, मशीन से भी किया जाता है. ओके, डायग्राम्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 27 इन योर टेक्स्ट बुक. आफ्टर वॉशिंग दीज फाइबर दे आर अलाउड टू ड्राई, और ड्राई हो जाए उसके बाद दे आर सेंड टू द फैक्ट्री. नाउ द फाइबर दैट वी आर सेंडिंग टू द फैक्ट्री इज क्लीन फाइबर्स. सो सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो क्लियर, आई गेस. what we are doing in the second step? We are cleaning it, removing the dirt, and we will send to the factory. Now next process, step 3, what will be happen? Sorting is done. Sorting करना मतलब अलग अलग छांटना, अलग अलग सब कुछ करना, सारी मिक्स जो चीज़ें होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. तो ये सॉर्टिंग किस बेसिस पे किया जाएगा? जो भी क्लीन फाइबर होते हैं उनका सॉर्टिंग करना है, पर कैसे? उनके टेक्सचर पे, मतलब कि उनकी लेंथ और कलर पे.
कलर के हिसाब से हम उनको अलग अलग करेंगे और उनकी लेंथ के हिसाब से अलग अलग करेंगे। जो फाइन हेयर होते हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, कोर्स हेयर्स आर यूज फॉर मेकिंग रग्स, एंड स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, दे आर नोन एज बर्स। देखो कॉलर पे जैसे लगे हुए हैं ना, वो क्या है, बर्स। ओके, मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो कैन बी मेड हियर, one एग्जाम्पल इज ओनली गिवन। ओके, सो थर्ड प्रोसेस इज ऑल्सो क्लियर, दैट इज सॉर्टिंग। नेक्स्ट स्टेप कम्स डाइंग। जो भी फाइबर्स हमें मिले शिप में, कैमल, याक, उन सब से, वो नेचुरली जैसा वो एनिमल है उस कलर के मिलेंगे ना, जैसे कि वाइट, ब्राउन और ब्लैक। पर इसको अगर हमें दूसरे कोई कलर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, डाई, मतलब उस पर कलर लगाएंगे। यस, सो दे आर डाइड विथ अदर कलर्स। धीरे धीरे उस पर हम कलर लगा देंगे। नेचुरल फ्लीस जो मिलता है, नेचुरल हेयर, नेचुरल फाइबर जो मिला, उसको हम कलर कर देंगे। आफ्टर दैट कलरिंग दे आर वूवन और स्पन। स्ट्रेट करते हैं उसको कोम करते हैं, फिर उसको रोल करते हैं। रोल क्यों करेंगे, यार्न बनाने के लिए। तो जो फाइबर्स मिले, वी आर रोलिंग दैट फाइबर्स इनटू यार्न्स, एंड देन दिस यार्न्स कैन बी मेड इनटू फैब्रिक्स विच विल बी यूज टू मेक स्वेटर्स एंड वूलन क्लोथ्स। जो लॉन्गर फाइबर्स हैं वो स्वेटर्स बनाने के लिए काम आएंगे, shorter fibers are used for making the woolen cloth. Clear this much? Okay. See, occupational hazard is one topic that you need to understand. वो क्या होता है occupational hazard? Occupational मतलब जो लोग काम करते हैं वो उनका occupation हुआ। hazards मतलब वहाँ पे जो उनको कुछ हो गया, उनके कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ। तो जो वूल इंडस्ट्री होती है ना, वो बहुत सारे पीपल की, जो हमारे कंट्री में रहते हैं, उनका मेन लाइवलीहुड है। तो जो सॉर्टिंग होता है ना, तो उसमें जो सॉर्टर्स का जॉब होता है, बहुत बार वो लोग एक एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से अफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें फैटल ब्लड डिसीज होता है, और उस डिसीज का नाम होता है सॉर्टर्स डिसीज। ऐसे सारे वर्कर्स जो ये रिस्क फेस करते हैं इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। आई गेस यू ऑल आर क्लियर नाउ। सी, गेट द हैबिट। ये सारे वीडियोस 2-3 बार देखो, सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और अच्छे से याद रह जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ईट वेल। थैंक यू सो मच, एंड हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 3. थैंक यू.